Gold and silver are making headlines. Both are at multi-year highs. And today I'll show you where the prices stand right now in India and how they have performed historically, what's driving this massive rally, and what could happen next. Plus, some practical ways which you can learn to invest safely. So stay tuned. So in India, 24 karat gold is somewhere around 13,073 rupees per gram, and that's about 1,30,730 per 10 grams. And silver is trading near 1.7 lakhs per kilogram depending upon the city and market. Recently, silver hit an all-time high and crossed the level of approximately 1.8 lakhs per kilogram on the MCX. And now if we talk about why gold and silver zoomed this year, so there are several reasons. तो सबसे पहले है Fed expectations and rate cuts, जिसकी वजह से safe haven demand काफी ज्यादा बढ़ रही है. Because a weaker dollar makes dollar price metals more attractive. सेकेंड हम देखें तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड रिस्क ऑफ फ्लोज की वजह से भी ये डिमांड हमें बढ़ते हुए दिख रही है. बिकॉज ग्लोबल टेंशंस और अनसर्टेनिटी की वजह से मनी गेट पुश्ड इनटू गोल्ड एज अ हेज. देन थर्ड हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर, इट इज राइजिंग एंड प्लस देयर इज टाइट सप्लाई. तो जैसे जैसे सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है इंडस्ट्रियल यूजेस में एंड सप्लाई काफी ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट रह रही है, तो सिल्वर ज्यादा वैल्यूएबल होता जा रहा है. स्पेशली अगर हम 2025 में देखें तो ये ट्रेंड काफी ज्यादा नजर आ रहा है. लास्ट अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इंडियन फैक्टर्स, बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, फेस्टिव एंड सीजनल डिमांड अगर हम देखें और ज्वेलरी डिमांड अगर हम देखें तो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है हाई लोकल प्राइसेस को. और इसकी वजह से ये ग्लोबल ट्रेंड्स भी कहीं ना कहीं एम्पलीफाई होते हुए दिख रहे हैं वंस द इंपोर्टेड प्राइस कन्वर्ट्स टू रुपीस. अब अगर हम इसके हिस्टोरिक परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल्ड ने 2025 में 60% रैली बना चुका है अभी तक ग्लोबली. एंड मेनी ग्लोबल बैंक्स स्टिल बिलीव कि अभी भी और अपसाइड पोटेंशियल है, फोरकास्टिंग अनदर 5 to 20% राइज ओवर द नेक्स्ट 12 months. एंड दिस मीन्स डिस्पाइट द बिग रैली स्टिल गोल्ड में अभी भी एक बुलिश स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं है, नॉट नेसेसरीली overbought forever. Also right now अगर हम global gold prices की बात करें so they are hovering around somewhere 4,187 US dollars per ounce, already काफी ज्यादा elevated. Yet काफी सारे बड़े ग्लोबल बैंक्स के एक्सपेक्टेशन अगर हम देखें तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ बुल रन टू कंटिन्यू इन 2026 एज वेल. बैंक ऑफ अमेरिका ने टारगेट दिया है अराउंड USD 5,000 पर आउंस नेक्स्ट ईयर एंड दैट्स नियरली 19% अपसाइड अगर हम करंट लेवल से देखें. They base this on rising US budget deficits, dollar weakness, inflation risk, and because gold remains under-owned by many institutions, इसलिए उनकी ये expectation कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है. Deutsche Bank की अगर हम बात करें तो they are seeing 2026 average at USD 4,450 per ounce with a possible trading range of USD 3,950 to 4,950 per ounce. Optimistic conditions में भी they are expecting कि price could test upper end at approximately $4,950. Goldman Sachs की बात करें तो उनका bullish stance leans on continued central bank buying and broader macroeconomic trends, putting a target near USD 4,900 per ounce by the end of 2026. HSBC भी काफी ज्यादा conservative है, but still they are bullish because they are expecting gold to reach approximately 3,600 to 4,400 per ounce US dollars in 2026 under a stable demand scenario. So even top banks में भी अगर हम देखें, while there is a range of views, consensus still tilts towards the bullish direction. Now if we focus on the triggers, like क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं that could move the price now, and if you are investing or trading in near term, तो कुछ चीजों को हम carefully watch कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले है speeches and policy signals from the US Fed, especially from its chair. तो अगर Fed सिग्नल करता है एक aggressive rate cut की तरफ तो गोल्ड में सर्च, अगर नहीं तो हम एक शार्प रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन अगर हम बात करें ग्लोबल जियोपॉलिटिक डेवलपमेंट्स और पीस टेंशंस के बारे में, तो कोई भी अगर काम डाउन सिचुएशन यहाँ पर होती है तो यहाँ पर हम सेफ हेवन फ्लोज को रिड्यूस होते हुए देख सकते हैं. देन अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक परचेजेस के बारे में या फिर डिमांड जो हमें ETFs और इंस्टीट्यूशन से देखने को मिल रही है, अगर वो स्लो डाउन होती है तो कहीं ना कहीं ये रैली भी अपना स्टेम लूज करते हुए दिखेगी. ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट सम वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पर काफी सारे वेज हैं थ्रू विच यू कैन गेट एक्सपोजर एंड ईच ऑफ देम हैव इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन और जो सबको पता होगा ऑलमोस्ट, दैट इज फिजिकल गोल्ड और सिल्वर इन फॉर्म ऑफ बार, कॉइन्स और ज्वेलरी.
सो प्रोस तो यही है कि एक टेंजिबल फॉर्म में आपके पास आ जाता है, बट कॉन्स ये है कि इसमें मेकिंग चार्जेस होती है, देन देयर इज जीएसटी इफ यू आर गोइंग फॉर ज्वेलरी एंड स्टोरेज इश्यूज एज वेल। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है गोल्ड ETFs या सिल्वर ETFs। एक तो ये लो कॉस्ट होते हैं एंड ऑल्सो दे आर इजी टू बाय और सेल एंड लिक्विड। फिर बात करते हैं कुछ डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जहां पर आप फ्रैक्शनल बाइंग कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट भी होता है, एज आपको एक बहुत हेफ्टी अमाउंट नहीं चाहिए यहाँ पर बाय करने के लिए, बट क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स मैटर्स अ लॉट। फिर बात करते हैं सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, विच आर SGBs, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ऑल्सो यू गेट इंटरेस्ट प्लस कैपिटल गेन बेनिफिट्स ऑन रिडम्पशन। फिर बात करते हैं MCX फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। ये ट्रेडर्स के लिए ज्यादा रिकमेंडेड किए जाते हैं बिकॉज दे हैव हाई रिस्क and high reward as well. So these are suitable if you monitor the market closely and use risk management. अब अगर हम बात करें कि फ्यूचर में what lies ahead for these, तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें मींस द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स, तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। गोल्ड में रीटेस्ट ऑल टाइम हाईज अगर मैक्रो डेटा और फेड सिग्नल्स फेवरेबल रहते हैं, बट कुछ सडन करेक्शन पॉसिबल है अगर जो भी चीजें एक्सपेक्ट करी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाती है। मीडियम टर्म यानी कि 2026 के फोरकास्ट तक अगर हम देखें तो विद फोरकास्ट फ्रॉम मेजर बैंक्स, गोल्ड का एक गुड चांस है कि वो टेस्ट करेगा अ लेवल ऑफ 4900 to 5000 पर आउंस, मीनिंग पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 15 to 20% फ्रॉम द करंट लेवल्स अंडर द बुलिश सिनेरियो। नाउ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म, दैट इज 3 to 5 years। तो अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही एलिवेटेड रहती है, जियोपॉलिटिकल रिस्क हमें देखने को मिलते हैं, या सेंट्रल बैंक की बाइंग ऐसे ही कंटिन्यूड रहती है, तो गोल्ड और सिल्वर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देखने को मिलेगी एंड दे कुड रिमेन अ स्ट्रॉन्ग हेज और एसेट एलोकेशन। सो इन शॉर्ट, गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट राइजिंग just because of short term news, rather ये एक काफी बड़ी long term global और economic factors के support के through rise हो रहे हैं। And if you are planning to invest for the medium or long term, so that could be a good opportunity, just make sure you choose the right option for yourself based on your risk and time horizon. And if you found this update useful, drop a thumbs up in the comments below and do not forget to subscribe to our channel. Thanks for watching.